Yeah, so welcome everyone. Today's webinar is about skin diseases, common skin diseases जो हमें अपनी ओपीडी में ज्यादातर दिखते हैं और हमें उसके लिए बेसिक क्या ट्रीटमेंट करनी है ये आज हम डिस्कस करेंगे. So actually this webinar is mostly for young new doctors who have just begun their practice. And as we all know कि अब बारिश का सीजन आने वाला है which is a favoring condition for skin disorders. तो हम उसी के लिए स्किन डिजीजेस के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड होप दिस हेल्प्स द न्यू डॉक्टर्स एज वेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट स्किन डिसऑर्डर्स. Right. So this is exclusively for our Nirok Street partner doctors, but those who have not joined the partnership program can also listen to this webinar, and I hope you become a part of our partnership program for upcoming such webinars as well. So when we talk about skin diseases, so basically हम modern के हिसाब से अगर देखेंगे, एलोपैथी के हिसाब से देखेंगे, तो what exactly is skin disorders or what exactly is dermatology? तो dermatology एक अलग से मेडिसिन की ब्रांच है जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें सिर्फ स्किन, हेयर और मे बी अदर सिम्टम्स लाइक नेल्स के कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स के स्किन के यहाँ प्रॉब्लम्स हो, इवन दे आर आल्सो कवर्ड अंडर डर्मेट. So dermatology is a specific study, specific branch of medicine. With that, even in Ayurveda, हम आयुर्वेद भी त्वचा विकार डर्मेट Ayurvedic dermatology is also an upcoming specialization for practice. तो मॉडर्न के हिसाब से what they are talking about when it comes to dermatology. So this is where the case taking comes in picture. So what modern medicine, what a dermatologist does, जब आपके पास पेशेंट आता है तो बेसिकली पेशेंट से वो क्या पूछते हैं, हाउ इज द केस टेकिंग डन. So basically they start with presenting complaint. Patient tells what problems they are facing. Probably it can be some acne, it can be some weird lesion coming on the skin. तो वो उनकी presenting complaint से ही start होता है. It starts with the nature, site and duration of the problem. Suppose acne है तो वो कब से है, उसका नेचर कैसा है, वो बहुत टच करने में कैसे फील होता है, इज इट पेनिंग देम, does the pus come out of the acne. So these are the basic presenting complaints which a dermatologist actually sees for the first time. उसके बाद उसकी हिस्ट्री आती है कि ये फर्स्ट टाइम आपको एक्ने कब स्टार्ट हुए थे, उधर कुछ अगर इचिंग है या एनी अदर प्रॉब्लम, बर्निंग सेंसेशन. They ask all these basic questions. Apart from that, they also, like a doctor also asks कि आपको क्या ऐसी चीज है जो खाने से आराम मिलता है, या कौन सी ऐसी चीज है जो खाने से या लगाने से उसको ये चीज और एग्रीवेट हो जाती है. So it comes under allergy to any food or medicine as well. And then lastly, they examine the skin. They observe the size, shape, color, any discharge is there or not. They understand through palpitation. And then they give the medicines as per the modern consultation, modern dermatology is concerned. So this is very common in any, if you go to any dermatologist, this is how it is going to be. But what happens when an Ayurvedic doctor takes an history? So if you talk about Ayurveda and skin diseases, there are almost 166 skin diseases जो बृहत्तरी में बताए गए हैं. उसमें से बहुत सारे कुष्ठ के ही प्रकार हैं, बट कुछ अलग अलग हैं. तो जब आयुर्वेदिक डॉक्टर, किसी आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट आई शुड से, अगर हम कोई हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की या हम किसी स्किन डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे लिए एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल. सो वी डोंट टेक 15-20 minutes like a dermatologist. We take over half an hour when it comes to skin disorder, क्योंकि हमारे तरफ पेशेंट आते आते उसके प्रॉब्लम्स एक्यूट से क्रॉनिक वैसे ही हो जाती है. So this is a very common practice in Ayurvedic चिकित्सा. तो अगर आप स्टार्ट करेंगे और अगर आप हिस्ट्री टेकिंग का बेसिक से देखेंगे, तो दिस इज फर्स्ट इज दर्शन परीक्षा.
तो हम सिर्फ उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो बता रहे हैं उसका ही दर्शन परीक्षण करेंगे क्या? सो नो, वी डू दर्शन परीक्षण फ्रॉम स्कैल्प टू टो। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर हमारी तरफ पेशेंट वॉक इन आया है तो उसका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसा है। विद दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। फिर हम स्पर्शन परीक्षण करते हैं। तो स्पर्शन परीक्षण हमारी आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, जो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, उदर परीक्षण करते हैं, एनी स्पेसिफिक एरिया। मतलब अभी हेयर स्पर्शन परीक्षण will also be palpating the site or the whatever lesion or acne we have to touch and see. So this is where the Sparshan Parikshan comes for us. And after that, we will obviously ask a lot of questions. तो हमारे जो प्रश्न परीक्षण है उसमें हम सिर्फ ये आपको कब से हुआ है और all these, like if you see these basic questions, initial appearance, itching है, what are the aggravating relieving factors, these are a part of our prashna pariksha. We ask everything in detail, we understand their dinacharya, we understand the रिस्पेक्टिव ऋतुचर्या, और हम इसी प्रश्न परीक्षण से हम हेतु ढूंढते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्किन डिजीजेस। और बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा दोष इन्वॉल्व है, और जो भी लीजन है या अगर कुछ भी एक्ने है या कोई स्कार है तो वो हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं। वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द इलनेस। उसके पहले अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, पास्ट हिस्ट्री, तो हम वो भी पूछते हैं। एंड देन वी डिटरमाइन दैट इफ दिस इज अ स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि। लाइक इफ दिस इज, फॉर एग्जांपल, इफ इट्स एन एक्जिमा ड्यू टू वेरिकोज वेन्स, तो यहाँ पर वेरिकोज वेन्स इज एक्चुअल द रियल व्याधि, आपको उसकी चिकित्सा करनी है तो आपका एक्जिमा उससे ठीक होने वाला है। So this is a very detailed and a very beautiful way of understanding skin diseases from Ayurvedic point of view. तो हमें डर्मेटोलॉजी की तरह चिकित्सा करनी है या हमें आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करनी है, दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट आवर ओन केस पेपर, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन डिटेल्ड हिस्ट्री, राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद। अगर हम सोचेंगे कि स्किन डिजीजेस क्यों होते हैं, सो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो स्किन डिजीजेस आर अ वेरी वेरी कॉमन problem, and it you can also say that skin diseases also come under lifestyle disorders. You would say why, but lifestyle disorders तो सिर्फ मतलब obesity, diabetes, thyroid ये सब है. That's not true. Hyperacidity और skin diseases are also new lifestyle diseases. और अगर आप कोई भी पेशेंट देखेंगे उसको कोई ना कोई स्किन का प्रॉब्लम रहता है. It may be स्वतंत्र परतंत्र as per their respective diseases, but some or the other skin issues are definitely there. Or these skin issues are due to some other factor, जो यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि अगर उनको कहीं इचिंग है, अगर उनको एक्ने है, अगर उनको डार्क स्पॉट्स हैं, दे एंड अप इग्नोरिंग इट, दे फील कि ये तो चला जाएगा, but that's not true. That is also one of the reasons for a skin disorder. So what are the common causes? Faulty diet or lifestyle. This is a very, very important cause, and it goes for all the diseases which we know. A faulty diet and a poor lifestyle ends up causing you a lot more than skin diseases. It affects your overall health. Apart from that, जो chemicals, cosmetics, अभी if you consider skin is our largest organ, or we are treating our largest organ as something which is like a canvas or a trial and error का हम कुछ सोचते हैं. हम कोई भी नया शैम्पू ले आए, अगर अच्छा दिखता है, some star is like advertising for it, we end up buying that. We buy a lot of cosmetics just like that. We use different types of soaps which have a lot of synthetic materials in that. Then shampoo and deodorant is again very common. I mean, I have seen people saying Ayurvedic shampoo, but when you use the word shampoo, it's not Ayurvedic anymore. You can say it's herbal shampoo. Like, but I feel that shampoo, deodorants, ये सारे जो fragrance, added preservatives वाली चीजें हैं,
These are all chemicals which we are knowingly and unknowingly ingesting and using it on our skin. हमारी skin, even though it's the largest organ, it absorbs things very very easily. तो अगर हम अनहाइजीनिक रहते हैं, अनहाइजीनिक अगर हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, if we are not having bath regularly, if we are not changing our undergarments regularly, so all these things come under unhygienic practices. And with that, unnecessary and overuse of antibiotics and steroids. This is very, very common. Popping pills is somehow I feel has become a new trend. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी सी चीज भी हो जाती है, बिफोर योर बॉडी इज एबल टू हील ऑन इट्स ओन, वी एंड अप पॉपिंग सम ऑफ द अदर पिल. तो ये दवाइयाँ, ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने की भी लोगों को बहुत आदत है. So all these things end up causing some or the other skin diseases. So I have just kept skin diseases के लिए clinical features. I have segregated it into Vata, Pitta and Kapha Pradhana, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे, this is something which is very easy to understand. आपके पास स्किन का कोई भी पेशेंट आता है, तो आप बेसिक चीजें उसमें क्या देखते हैं कि उसको क्या, उस स्किन के प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या फील हो रहा है और उनका ओवरऑल त्वक का परीक्षण कैसा है. तो वात प्रधान ये सारे लक्षण अगर आपको दिखेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ मेजर वाता इम्बैलेंस हियर. इफ यू सी एनीथिंग रिलेटेड टू पित्त प्रधान, तो जहां भी आपको बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लेमेशन, दाह, राग, ये सारी चीजें दिखेंगी, दिस इज डेफिनेटली पित्त प्रधान प्रॉब्लम. And when you talk about Kapha Pradhana, it is more or less a chronic disorder, जिसमें आपको कंडू सबसे ज्यादा कॉमनली दिखता है. लाइक दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन लक्षण. सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू एक्चुअली सी द पेशेंट. So this is how you can classify it. और वाता प्रधाना is usually everything is dry in nature. तो और जो भी acute conditions आपको दिखते हैं inflammatory, वो सारे पित्त में आते हैं, और जो chronic देखते हैं वो मोस्टली कफ में आते हैं. So if you see on OPD level, आपको क्या कौन से diseases सबसे ज्यादा दिखते हैं? So for new doctors, you will 100% you will see acne, you will 100% see urticaria, you will see rashes in summer season, you will see a lot of fungal infections, you will also see a lot of eczema, psoriasis, but आपको initial stage में शायद वो maybe ना आए, but you will obviously be able to see these cases as well. तो ये अब क्लिनिक में बहुत कॉमनली आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या जिनको जो बहुत ओबीज हैं, दे हैव डार्क स्पॉट्स ऑन देयर नेक, बैक एंड अंडर आर्म्स. सो दिस इज ऑल्सो व्हेन यू सी दैट एज अ लक्षण, आपको सिर्फ उसी की चिकित्सा करनी है ऐसा नहीं है. सो व्हेन यू सी दैट अकैंथोसिस, that is not just you're not just treating acanthosis for that matter, you are understanding the cause. Maybe you have to treat the insulin resistance for that, you have to talk about you have to treat the metabolism for that. So these are all the basic understandings कि ये सारे जो डिजीजेस हैं इसके पीछे का क्या कॉज है, असली हेतु क्या है, और स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र व्याधि है, ये आपको उस वक्त डायग्नोज करना है. और डायग्नोज करने के बाद आप बहुत इजीली चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें स्वतंत्र व्याधि भी हो सकते हैं और एज अ उपद्रव भी आपके यहाँ आपको दिख सकते हैं. सो यू हैव टू सॉर्ट द मेन रीजन एंड ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली. सो दीज आर योर ओपीडी लेवल कॉमन डिजीजेस. सो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस? आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे हम बाकी के डिजीजेस में बताते हैं, तो ऐसा अगर कुछ स्पेसिफिक फॉर स्किन डिजीजेस हैं क्या? So there are no specific testing except allergy testing. That is also optional. अगर आप ये अपनी प्रश्न परीक्षण में आपको नहीं समझ आता है, तो you don't know, then you have to maybe ask them to go for allergy testing. बट प्रश्न परीक्षा में आप पूछ ही सकते हैं कि कोई अगर मेडिसिन लेके आपको कोई प्रॉब्लम है क्या. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को कुछ फूड खाने से प्रॉब्लम है, लाइक सम पीपल हैव अ टेरिबल एलर्जी टू मशरूम्स और सी फूड, तो अगर ऐसा कुछ खाने के बाद उनको क्या होता है, व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन दे आर
facing? Do they have like patches on the skin immediately when you eat? Some allergen अगर आप किसी कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सारी बेसिक चीजें जो आप पूछ सकते हैं. एंड पैच टेस्टिंग इज समथिंग विच शुड बी डन इवन इफ वी आर डूइंग यूजिंग आयुर्वेदिक मलहर्स ऑल्सो. क्योंकि हम बहुत सारे जगह में हम जैसे गंधक का भी मलहर बनाते हैं, हर एक पर्सन को वो सूट होगा इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं. तो आपको उनको उस चीज में भी लाइक व्हाट डर्मेटोलॉजिस्ट डू, यू हैव टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू गिव द मेडिसिन टू एनी ऑफ योर पेशेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लड टेस्ट आप क्या करवा सकते हैं? सो ब्लड टेस्ट आप जो भी पेशेंट के आपको लगता है कि कॉज है, तो उसके हिसाब से आप उनको उस हिसाब से ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक इफ यू सी दैट देयर इज अ डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो आप डेफिनेटली एक एलएफटी रेकमेंड कर सकते हैं टू सी इफ द लिवर इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली और नॉट. So this is just an example. You can decide your tests as per your diagnosis. और बाकी के जो एडवांस स्टेज में कुछ टेस्ट हैं जो कि बायोप्सी और स्किन कल्चर है, विच इज नॉट डन ऑन एन ओपीडी लेवल. मतलब मोस्टली आपको ऐसे ओपीडी लेवल पे नहीं देखेंगे केसेस, बट इन केस you should know when a biopsy needs to be done or when a skin culture needs to be done. So this is really important. So what are the treatment guidelines? So this is some points from good clinical practices. अगर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली क्रॉनिक जो स्किन डिजीजेस हैं उसका पहला ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी शोधन, विच इज लाइक रिकमेंडेड बाय ऑल द आचार्यज वी नो. तो क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए शोधन चिकित्सा इज मस्ट. उसके बाद जो डिजीज के स्पेसिफिक आपको रसायन चिकित्सा देनी है, शमन औषधि देनी है, दैट इज एज पर यू. फॉर व्हाई यू शुड ऑलवेज गिव शोधन फॉर क्रॉनिक इज बिकॉज तब इतनी ज्यादा दोषों का निर्धारण करना इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन उस टाइम शमन औषधि देंगे, तो भी क्रॉनिक डिसीजेस में, क्रॉनिक स्किन के प्रॉब्लम्स में वो काम नहीं करेंगे. बिकॉज स्रोतस इतने ज्यादा अवरोध के स्टेज में रहते हैं कि आप कितना भी अच्छा रसायन या शमन औषधि देंगे, इट विल नॉट हेल्प unless and until there is a basic detoxification, that is shodhan. Plus, we know that there are psychosomatic problems, psychosomatic disorders. तो ऐसे प्रॉब्लम्स स्किन के साथ भी होते हैं. अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल इज अर्टिकेरिया, शीत पित्त. किसी को अगर बहुत स्ट्रेस है या किसी को कुछ, इफ दे आर नॉट एबल टू हैव अ वेरी स्टेबल लाइफस्टाइल, स्टेबल माइंड, देन मेजर ड्रग्स आर शुड बी गिवन टू दीज पेशेंट्स जिनको ये ऐसे क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स हैं. So this is a very important point to be understood and practiced when you get a patient for a chronic skin disease. With that, any रस औषधि कोई भी रस औषधि हो वो 40 डेज के लिए हमें देना चाहिए. 40 डेज के बाद with you should stop the रस औषधि at least for 15 days, and that time you should always give a hepatoprotective medicine. तो अगर हम आरोग्यवर्धिनी भी देखेंगे तो भी आरोग्यवर्धिनी इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. हमने ऐसे भी देखे हैं वैद्य जो 5-5 6-6 महीने रस औषधि कंटिन्यूस देते रहते हैं. तो आइडियली अगर हम ग्रंथोक्त चिकित्सा का अगर हम पॉइंटर्स नोट करें, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रस औषधि. एंड देन शोधन ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बिना शोधन के भी ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे वैद्य 3-3 4-4 महीने कंटिन्यूसली शमन चिकित्सा या मेडिसिन देते रहते हैं. बट शोधन इज मस्ट. इट्स नॉट जस्ट थ्रू पंचकर्म. आप शोधन के लिए आप उनको आहार से भी शोधन कर सकते हैं, आप उनको कुछ मेडिसिन से भी शोधन कर सकते हैं, और कुछ विहारीय कंसेप्ट भी यूज करके आप उनका शोधन कर सकते हैं. बट शोधन इज डेफिनेटली मस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी सी इन एक्यूट स्टेज, अगर कोई एक्यूट स्टेज आपके पास आती है जहाँ पर दाह है, बहुत ज्यादा दाह है, कुछ पस फॉर्मेशन है, उस स्टेज में आपको ऑयल और ऑयल बेस्ड स्निग्ध चिकित्सा नहीं करनी है. क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा दाह और वहां पे इतना स्निग्धता ऑलरेडी वहां पर है. सो आपका वहां पर कफ भी खराब हो गया है, पित्त भी खराब हो गया है, वात भी खराब हो गया है. ऐसे चीज में अगर आप ऑयल और ऑयल बेस्ड कुछ भी यूज करेंगे,
that will not really help you. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर कुछ हो तो उसको आप रूपचर्ण से या कुछ ड्राई चिकित्सा आपको वहां पर यूज करनी चाहिए। और अगर आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो आप उसको स्नेहन से ठीक कर सकते हैं। सो दीज आर योर बेसिक गाइडलाइंस। यूजुअली व्हाट वुड यू डू व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट? तो अगर बहुत त्रिदोषजन्य त्वक रोग है तो उसमें आप हमें कहा गया है कि पुनः पुनः शोधन करना चाहिए। मतलब शोधन आपका बार बार, आई एम नॉट सेइंग कि विरेचन करो फिर वमन करो, नहीं। योर शोधन शुड बी एज पर पेशेंट्स रुग्ण रुग्ण बल और व्याधि बल, वो देख के आपको शोधन करना चाहिए। और रिपीटेड शोधन के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक तो आप कर्म कर सकते हैं, पंचकर्म कर सकते हैं, थ्रू दैट शोधन कर सकते हैं। एंड देन थ्रू मेडिसिन भी आप शोधन कर सकते हैं। सो आफ्टर शोधन एंड रक्तमोक्षण घृतपान इज एसेंशियल, क्योंकि वात प्रकोप शोधन के बाद हमें पता ही है कि वात प्रकोप होता है। अगर आप पंचकर्म आदि कोई शोधन करते हैं तो संसर्जन क्रम का फॉलो करना इज वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस केस। एंड देन इफ यू वांट टू यूज एनी लेप, तो आफ्टर शोधन और रक्तमोक्षण आप डेफिनेटली वो यूज कर सकते हैं। त्वक रोग में सबसे इम्पोर्टेंट शोधन अगर हम देखेंगे तो वमन विरेचन ही है। आपको कोई स्नेह विरेचन नहीं करना है उस टाइम, बट आपका वमन विरेचन, या फिर इन दिस केस यू कैन ऑल्सो डू, अगर दोषों की स्थिति बहुत ज्यादा हो और आपको लग रहा है कि व्याधि बल रुग्ण बल बहुत अच्छा है, तो आप सद्य वमन और सद्य विरेचन का भी प्लान कर सकते हैं। So these are like some of the medicines which you can do for virecin. Virecin is my go-to treatment when it comes to त्वक रोग, और दिस रियली हेल्प्स क्योंकि शोधन उससे बहुत अच्छा हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको अभी के जैसे बारिश का सीजन है तो उसमें आप थोड़ा नित्य विरेचन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बारिश में ही ये सारे स्किन के प्रॉब्लम्स थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर दिस वर्षा ऋतु, तो आप शरद ऋतु के स्टार्टिंग में या थोड़ा शरद ऋतु मिड में आप प्रॉपर वेरिएशन भी प्लान कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर इफेक्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। These are the basic medicines which you can use for variation. And Rakta Mokshan is really very important, especially in cases of eczema and psoriasis. तो यहाँ पर जलोका का यूज सबसे ज्यादा और सबसे सेफ किया जाता है। इफ यू आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट डूइंग सेरावे, आप वो भी कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू मेडिसिन, और जिसको हम कह सकते हैं कि हम कौन से कल्प ज्यादा यूज करें अपने प्रैक्टिस में, और बेसिकली ऑन ओपीडी लेवल इफ यू कैन से। सो आइडियली ड्रग ऑफ चॉइस खदीरा रहता है, आरगवद रहता है। दिस इज वेरी सिंपल। खदीरा की वजह से आपका कंडू सबसे ज्यादा कम होता है। कफज और जो भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उस पे खदीर बहुत अच्छा काम करता है। सेम इज विद आरगवद, और आरगवद एक मृदु शोधन भी कर लेता है। सो दिस इज रियली, these two drugs are like, I would say कि I definitely use this. Apart from that, all the common Rasakalpa which we know is Arogyavardhini, Gandhak Rasayan. This is a very common combination which is used. Apart from that, for cases like Shita Pitta or urticaria, you can say, आप वहां पर कामदुदा या फिर हरिद्रा खंड ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एंड फॉर अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम लाइक एक्ने, जो भी आपको लाइक नॉर्मली दिखते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आप महामंजिष्ठा, सारिबा ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। पंचतिक्त घृत गुग्गुल तो डेफिनेटली सब पे जाता है। और कैशोर गुग्गुल जो है, अगर आप उसको स्पेसिफिकली, इट कैन बी अ डिफरेंट topic altogether if you talk about Kashwar Gugul. But Kashwar Gugul is a rasayan as well, and it is supposed to be, the name only suggests that it is supposed to maintain your youthfulness. So for skin diseases, it's the drug of, like one of the drugs of choice, which I would actually recommend as well. कि अगर गुग्गुल यूज करना है तो जैसे हम कहते हैं ना अंधेरे में तीर मारना, so कैशोर गुग्गुल definitely goes for that. So that these are like one of the, these are few of the common kalpa which are commonly used for your OPD level clinical practice. तो अभी हमने जो भी डिसीजेस जो OPD लेवल में देखे थे
इनमें से आप किसी का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे लेप चिकित्सा या तेल का यूज करना, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू स्किन डिजीजेस, बिकॉज आपको कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए एज पर द, लाइक इट्स वेरी कॉमन। सो इसमें आप डिजीज के हिसाब से, क्योंकि आपने जो डायग्नोज किया है उसके हिसाब से आप उनको कुछ भी मलहर कल्पना यूज करके दे सकते हैं। So these are like few of the medicines which I would recommend. And last but not the least is your diet and lifestyle advice. तो ये सिर्फ अगर आप मेडिसिन देंगे फॉर स्किन डिजीज, इट माइट नॉट रियली इफेक्ट 100%। 10-12% का कुछ अगर आपको डेफिसिट है तो वो अगर आहार विहार फॉलो ना हुआ तो उसी की वजह से होता है। तो आहार में आपको, यू शुड नॉट जस्ट फोकस, आप उनको ऐसा नहीं कर सकते पेशेंट को कि आप अब सब खाना छोड़ के एकदम सात्विक आहार में सिर्फ खिचड़ी खाओ। सो नो, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन सजेस्ट देम। जैसे कि आपका लघु आहार में आप उसमें तिक्त जो भी मेडिसिन हैं आप उनका डेफिनेटली यूज कीजिए। लघु आहार में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन मूंग तो डेफिनेटली इज वन ऑफ द थिंग्स। देन यू कैन से अगर किसी को स्नैक्स खाने की आदत है, शाम को भूख लगती है लोगों को, तो आप उस टाइम पे उनको जो हमारे लाया होते हैं लाजा, उसका कुछ रोस्टेड समथिंग लाइक दैट यू कैन सजेस्ट देम। सो दीज आर ऑल योर बेसिक food items which you should suggest. With this very important point to note कि इनमें से अगर किसी को भी पेशेंट को एलर्जी है, यू शुड नोट डाउन द एलर्जिक पॉइंट्स। और ऐसा भी है कि कुछ पेशेंट को कुछ खाना पसंद नहीं होता है, एंड इफ यू मेक देम ईट दैट, दे आर नॉट हैप्पी एंड देन दे डोंट फॉलो योर ट्रीटमेंट एट ऑल। तो ऐसे केसेस में भी आपको पेशेंट का साइकोलॉजी भी सोचना पड़ता है, बिकॉज मे बी एलोपैथी माइट नॉट नोटिस दिस, बट अगर हम देखेंगे कि अगर हृदय मेडिसिन या हृदय आहार विहार पेशेंट के साथ हो, तो पेशेंट विल बी रियली 100% फॉलोइंग योर all medicines, all advices, and probably you will get faster results. So these are some of the ahara vihara which you should be mentioning to your patient as per their lifestyle and per your ritucharya also. So with this, I thank you for patient listening. Hope this was informative to you all. I'll be sharing this PPT also with everyone. Those who are in the partnership program, you will be getting this PPT as well. Dr. Kirti, is there anything from your end you want to add on to anything? So beautifully explained, ma'am. I hope काफी लोगों को clear हुआ होगा. Am I audible? Yes, yes, you are. Okay. So अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप चैट बॉक्स में उसको डाल दीजिए. We'll start answering one by one. How can we manage open pores by Ayurveda? Okay, for open pores, there is a lot of oily skin. Oily skin जिनका रहता है उनके लिए हम लेप चिकित्सा मेंशन करते हैं. So for open pores, you have to see. अभी what I don't know what you call it in in Hindi, but हम जिसको कहते हैं it's a type of अम्बे हळद बोलते हैं उसको, अम्बा हल्दी. I don't know what it is known as in Hindi. I'm not that great with Hindi. But yeah, this is something which is very commonly used. Then you can use all the Shita Dravya also for that as a lake, so that you can use for that. It acts as a toner. Okay. Okay. Dr. Kirti, do you want to filter out some questions because people Yes, are asking? yes, I will draft. Yeah, yeah. Okay, so what can be done for hyperpigmentation?
Hyperpigment, everything starts with Shodhan. So start with Shodhan first. And then Varnya, from Varnya group, you can select any medicine. Thanks, Dr. Beena ma'am. Okay. For eczema, what medicine, internal and external? Okay, so the medicines list is there in this PPT. You can find out from that. So on purpose, I have not taken specific diseases in this uh, presentation. The thing is, क्योंकि psoriasis, eczema ये अपने में ही बहुत डिटेल में disorders हैं, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना और समझना is a very it will be a separate session altogether. So that is why we have specifically kept diseases which are very common. और ओपीडी में अगर कोई नया डॉक्टर है जिसको पता नहीं है स्किन डिजीजेस में क्या देना है, so they can maybe refer to this. So this is a very basic introduction for skin diseases. ओके, तो प्रॉपर डिजीज ट्रीटमेंट आप हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमारा इन्फो शेयर कर देती हूँ। यस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माय कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी आल्सो। Those who are asking for Shodhan medicine, it is there in the slide. आपको slide share हो जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं. Because it all, see, basically there is no universal medicine for Shodhan. आपको व्याधि और रुग्ण बल देख के ही शोधन देना पड़ता है. तो आपको मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट को अगर आप शोधन में मतलब विरेचन कर रहे हैं, तो किसी को त्रिवृत्त से भी अच्छे वेग आ सकते हैं, तो किसी को इच्छा भेदी से ही आते हैं. या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को सिर्फ अभिपत्तिकर नित्य विरेचन में दे दे, तो भी दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट. यू डोंट हैव टू प्रोबेबली गो फॉर अ कंप्लीट शोधन. So this is all patient to patient. So there is no universal rule or universal medicine कि, और आयुर्वेद हमारा इतना यूनिवर्सल ऐसा है भी नहीं. आयुर्वेद इज वेरी वेरी कस्टमाइज्ड, क्योंकि व्यक्ति और प्रकृति देख के ही हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं. यस. Okay, psoriasis का best treatment someone is asking. So before going for treatment, I have shared our contact info with you all. आप प्रॉपर केस के साथ डिस्कशन करेंगे तो बेटर वे में वी कैन प्रोवाइड सम सजेशन फॉर ट्रीटमेंट. डॉक्टर प्रियंका मैम विल प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर दैट एंड प्रॉपर पंचकर्मा थेरेपी टू. Yes, if you have any doubts regarding that, we can. डॉक्टर इंद्रजीत सर हैज आस्क्ड लॉन्ग टाइम मेडिसिन नहीं चलाना है व्हाई. सर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, ही मींस टू आस्क कि बहुत लॉन्ग टर्म तक हमें मेडिसिन नहीं देना चाहिए. सो इट इज वेरी ऑब्वियस, आप लॉन्ग टर्म तक जब मेडिसिन देते हैं तो आपको लगता है कि अभी 1-2 महीने मेडिसिन हो गए तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट कुड बी कि आपने शोधन नहीं किया है. बेसिकली पेशेंट का अगर शोधन ही नहीं हुआ है तो उसको वो डिजीज अफेक्ट मतलब उस मेडिसिन का कुछ यूज नहीं लग रहा है. आप शोधन और कोई भी चिकित्सा या कोई भी मेडिसिन अगर आप सोचेंगे, तो आपको जब तक अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको मेडिसिन देना है. बट इट डजेंट मीन कि आपको 1-1 2-2 साल सेम मेडिसिन देते रहना है. उससे जैसे कि हम देखते हैं मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है. सेम ही अगर आप देखेंगे, आप कंटिन्यूसली ऐसे मेडिसिन देते रहेंगे, इवन फॉर एग्जांपल आप किसी को कामदुदा भी अगर देते रहेंगे, तो कामदुदा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिन की जिसका साथ में तैयार हो जाता है अपनी बॉडी में. तो आपको जो एक्चुअली दोष निकालने हैं बॉडी में से, आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो आपका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं. So that is one of the things you should consider when you give medicines or when you plan a treatment for someone. इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन देना इज नॉट, इट्स नॉट ब्लाइंडली गिविंग दैट. यू हैव टू ऑब्जर्व वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ कि आपका पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है.
That's the reason. Dr. Vaishali Sharma has asked one question. Which Yeah. procedures can be done in Ayurvedic dermatology? So we have lots of Panchkarma therapies. शोधन कर सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का डिजीज कैसा है, पेशेंट की व्याधि कैसी है, प्रकृति कैसी है. That already been shared. Yeah. Exactly. And apart from that also आपको you can do a lot of स्थानिक चिकित्सा as well. मतलब आप चक्रधारा जैसी चीज भी कर सकते हैं. So that is also one of the like important things which you can do. Lep chikitsa you can do, udvartan you can do. So you should consider. You can also study our grantha for maybe understanding Ayurvedic beauty treatments. ये हम जो अभी देखते हैं common face packs and all. Face packs are what? They are lep only, right? They are lep chikitsa. So they have modified and they are selling it to us in the form of face packs. But ideally, these are the things which should be used. यस, हमारे संहिता में काफी अच्छे से त्वचा रोग का वर्णन किया है, कुष्ठ रोग की चिकित्सा में, इवन काय चिकित्सा में भी त्वगत रोग का अच्छे से वर्णन दिया हुआ है कि Yes. कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो मतलब उसमें यही बताया है कि रक्त धातु पित्तज प्रकृति मेन उसका वो रहता है, और रक्त धातु धातु की अगर चिकित्सा करें या प्रकृति की पहचान करके चिकित्सा करें तो ज्यादा वो इफेक्टिव होते हैं. और कुष्ठ रोग में भी हमारे काफी सारे दो महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ के टाइप होते हैं, जिसमें Yes. प्रकृति के अनुसार उनको डिफाइन किया गया है. तो आप थोड़ा सा स्टडी करें ग्रंथ को, ग्रंथ में बहुत अच्छे से, और हमारी काय चिकित्सा की बुक में भी काफी अच्छे से उसका विवरण किया है. Yeah, someone is asking any good book to understand. So there is one Kushtarog book by Baidyanath. तो चर्म रोग चिकित्सा ऐसा कुछ नाम है उस बुक का. इट्स अ बिग बुक, इट्स इन हिंदी. ग्रीन कलर का उसका कवर है. तो इट्स बाय बैद्यनाथ पब्लिकेशन, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी गुड बुक. इट हैज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, केस पेपर्स. तो अगर आपको स्किन डिजीज के बारे में, स्पेशली सोरियासिस के बारे में पढ़ना है तो वो बुक बहुत अच्छी है. एंड लाइक डॉक्टर कीर्ति सेड, हमारे ग्रंथ इज द बेस्ट विच यू कैन हैव. यस, हमारे ग्रंथों से बढ़ के कोई बुक नहीं हो सकती है. जो सिद्धांत लिखे हैं उन्हीं को फॉलो करें तो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे. बिकॉज मेरा भी ऐसे ही है कि जब भी मैं उसको पढ़ती हूँ तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेती हूँ. नोट्स बनाने की हैबिट आप जरूर डालिए कि जब भी आप पढ़ते हैं तो ट्रीटमेंट का नोट्स बना लें और उसको अप्लाई करना शुरू करें. सो इट कैन गिव यू बेस्ट रिजल्ट. या तो डॉक्टर अभिषेक asked one question. मैम आपने बताया शोधन मस्ट है, सो कैन बी यूज परगेटिव ड्रग इन पेशेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर? यस ऑफ कोर्स, विरेचन तो करना ही है ना. यस, विरेचन तो है ही. ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट डॉक्टर जिगीशा मैम आप हम लोग को मेल कर सकते हैं और हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपके साथ शेयर किया है, एक बार और मैं फिर उसको शेयर कर देती हूँ. Yes, definitely. Someone has asked, can we use Yashad Basma in skin disease for external purpose? For external purpose, I have personally not used, but I need to check reference. ग्रंथ अपने इसमें बुक में देख के you will see. I have personally not used. Dr. Abhishek has asked one more question. In skin diseases, there is common complaint itching. Cetirizine का आयुर्वेद सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं for severe itching complaint? Frankly, you should not replace any drug like that हमारे मेडिसिन से. आयुर्वेद किसी मॉडर्न मेडिसिन का रिप्लेसमेंट अगर आप देखिए ही मत. अगर आपको लग रहा है कि इचिंग इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, तो आप कंडू के लिए क्या दे सकते हैं, कंडू चिकित्सा देखिए. और द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस आई वुड से फॉर कंडू इज खदीर. आप खदीरा रिष्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट का बल और अग्नि देख के. अगर अग्नि वीक होगा तो अरिष्ट दे सकते हैं डाइल्यूट करके पानी के साथ.
but Khadira Rishta is the best. Yes. Dr. Gaurav sir has asked one question. Can food allergy be treated permanently? The food allergy is a little different. सर आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमको मेल कर दीजिएगा. Food allergy can be okay. So basically food allergy अगर हम देखेंगे तो वो भी उसका हेतु is eating something which you can't, which you should not eat. तो आप हेतु निदान परिवर्जन is the main thing. So I'll give you a very personal example. Very personal example. My husband is allergic to mushrooms. अगर उन्होंने मशरूम का कुछ भी एक दाना भी गलती से खा लिया, so he will feel like vomiting or he will have a rash on his neck. So this is a very common thing which has happened. तो इसकी चिकित्सा यही है कि वो नहीं खाते हैं मशरूम. दिस इज निदान परिवर्जन. So this is something which you should actually talk to your patient about and tell them that you should not do that. As simple as that. Yes, Yashad Bhasma is actually, it is a component of zinc, but the thing is कि उसको मैंने personally कभी use नहीं किया है topical treatment में. So I cannot really comment on that, but I would really like to know more. I'll read and I will get back to you about the same. But internally, yes, I have used it for internal consumption. इंडिविजुअल स्किन डिजीज का सेशन लीजिए प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल लेंगे सर. Will definitely do. Great. Dr. Preeti has also shared our partnership program link with you all. Yes, So yes. definitely आप link पे अपना form fill up कर दीजिए so that you become a part of this community, and then we can have these sessions every week with you all. Yes, I'm sharing. Ringworm, yes, ringworm के दो questions आए हैं अभी. So basically ringworm अगर आप सोचेंगे तो आप clearly कृमि की चिकित्सा ध्यान में रखिए. So कृमि के लिए आप क्या medicine use कर सकते हैं? So that is how you should be treating ringworm as well. जब तक same when you talk about the same thing like ringworm, वो भी आपका शोधन ही होना चाहिए initially, क्योंकि तीव्र शोधन से ही कृमि शरीर से बाहर जाती है. So this is a very common thing for ringworm or any fungal infections also. For fungal infections also आपको इनिशियली शोधन देना ही चाहिए, क्योंकि और रक्त दुष्टि के जो भी लक्षण है आपको उसको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए. If you see fungal infection, my personal drug of choice is Sukshma Triphala initially. I always give Sukshma Triphala for fungal infections along with other medicines as well. सो यस, फंगल इन्फेक्शन जो है अभी हमारा जो मॉइस्ट वेदर आने वाला है, बारिश के मौसम में, स्पेशली वर्षा ऋतु में, ये काफी कॉमन होता है और काफी लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है. Exactly. इसमें गंधक रसायन या मल्हार भी यूज कर सकते हैं. मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मैं इसी के अकॉर्डिंगली चलाती हूँ, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं. True. Exactly. And it goes from patient to patient. And my one request to all the doctors who are here कि आप कोई भी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट मत पूछिए, बिकॉज सब्स्टिट्यूट नहीं है. हम किसी भी मेडिसिन को, एलोपैथी के मेडिसिन को एग्जैक्टली आयुर्वेद में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. आर मेडिसिन आर टोटली डिफरेंट बिकॉज हम दोष और व्याधि बल रुग्ण सब देखते हैं. So this is not as per the common things when it comes to allopathy medicine. Malahar is a kalpana which is one of, अगर आप भेषज थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें मलहर कल्पना बताई है. Malahar is topical treatment which you can say these are all creams and ointments. I'll give you a very simple example of Malahar. One of the commonest Malahar is Sarjaras Malahar, और for that matter गंधक मलहर, और इवन सबसे इजी अगर है तो आपका शतधोद्भूत इज ऑल्सो मलहर.
Okay. Yes, I think we are. Dr. Gaurav Kaushik wants to discuss for allergy issue more. सर मैंने अभी कॉन्टेक्ट इन्फो आपके साथ शेयर किया है, आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो वी कैन सजेस्ट यू बेटर ट्रीटमेंट देयर. I'm writing the names of Malahar if you want to know. गंडक आदि भी मलहर रहता है. Dr. Kirti, can you share a reference with everyone later कि मलहर कल्पना उनको अगर पढ़ना है तो वो वंशज में कहाँ पढ़ेंगे, तो वो आप उनको ढूंढ के आप ग्रुप पे शेयर कर देना. श्योर श्योर, मैं शेयर कर दूंगी. आई शेयर रेफरेंस. Yes, topical ointments are malahars. Okay. All right, I think we got a lot of good questions and treatment specific, disease specific ज़्यादा doubts हैं सबको regarding very commonly psoriasis, eczema और vitiligo. So ये हम individual sessions भी हम इनका plan कर सकते हैं और maybe a combination of very chronic skin diseases ऐसा भी हम कुछ plan out कर सकते हैं. Okay. Someone's asking steroids should be used for skin diseases. Dr. Abhishek again is asking. If we are Ayurvedic doctors, if we are Vaidyas, we are Chikitsaks who don't use allopathy, then we should not use steroids as well. Yeah. So Dr. Abhishek is asking a question. Do steroids should be used for skin diseases? See, that's what I'm saying. From our end, as a Vaidya, I will say no. I will not use for my patients for sure. But so steroids जैसा पावरफुल काम करने के लिए मैं तो शोधन से ही स्टार्ट करूंगी. So this is my line of treatment. Of course, you can have your own line of treatment. You can think about what you want to do, but it all depends on the patient and it all depends on what availability you have of medicines with you at the moment. And for that, we are there to help you out because you can order medicines from us and have a stock at your own clinic for all the basic medicines which you can have. Yes. डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे पर्सनली कम्युनिकेट करूंगी. आई गॉट लॉट्स ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम योर साइड, सो आई विल कम्युनिकेट आफ्टर वेबिनार. Okay, great. It was a pleasure talking to all of you. Hope you all got some basic ideas about basic line of treatment for skin disorders. मुझे जितना मालूम है, जितना मेरी पढ़ाई अब तक हुई है, उस हिसाब से with my clinical experience, I could share this much with you. I'm sure there must be very, very senior doctors in the group as well. And if you also have any different mode of, medicines or anything, you can always share that with the group. This is a community. I'm not here to teach you all anything. I'm just here to share something and, share some knowledge with you all. So I hope this helps you and we can have more sessions like these every One week. more last question is there. Dr. Indrajit sir has asked, जब बहुत ज्यादा इचिंग हो तो कौन सी मेडिसिन यूज करना चाहिए? तो आप निम्बादी, गुग्गुल वगैरह आरोग्य वर्धिनी यूज कर सकते हैं और बाकी प्रकृति तो आप उसको उनको सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति उनका कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. Yes, of course. So I hope everyone सबको अच्छा ही लगा होगा आज का वेबिनार, cause it was very interactive and हम लोगों ने काफी important स्किन डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट किया है जो ऑलमोस्ट सभी को, मतलब लाइफ में एक बार स्किन का इशू तो सबको होता है. मुझे तो होते रहता है, कभी एक्ने हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कॉमनली इसमें तो आती है. तो
चाहते हैं कि इसको आप लोग और अच्छे से संहिता के माध्यम से और कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से इसको पढ़ते रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि स्किन के पेशेंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो गांव हो, शहर हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको स्किन ट्रीटमेंट के लिए, स्किन डिजीज के लिए जो भी पेशेंट है वो आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसको आप प्रॉपरली पढ़िए और उसको एग्जामिन करिए और ट्रीटमेंट अपना बना के पेशेंट को शेयर करिए। Great, great. All right. Thank you so much, everyone, for patient listening. Thank you, Dr. Kirti. Thank you, everyone. Thanks for joining webinar. Looking forward everyone to join our partnership program, जिसमें आपको और भी कई सारे webinars और disease के PDF और creative content मिलेंगे जो आपकी clinical practice को और बढ़ाने में helpful रहेंगे। तो एक बार मैं और आप लोगों के साथ partnership program की link share कर देती हूँ। आप उस link के माध्यम से basic details अपनी भर दीजिए, हमारी team आपके साथ जल्दी communicate करेंगे। Yes. All right. Thank you so much, everyone. Thank you everyone for joining the